Hello, good evening. I'm Harpreet and welcome to Penisha Pain Talks episode number 76. Today we are going to talk on the topic which is pain after TKR or knee replacement surgery. And we have with us Dr. Siddharth Verma, who's a spine and pain physician. Welcome, Dr. Siddharth. Thank you, Harpreet, and welcome all of you to this pain talks. We're going to discuss about the pain after knee surgery. Okay. So can you tell me that what are the causes which lead to this knee replacement or TKR? So the most common causes, they include the osteoarthritis or arthritis due to any cause, or the joint damage. So advanced age is the most common reason, because that's the number one cause for osteoarthritis. So is it advisable when most of the people who do this knee replacement surgery, they get a bone pain after that? So what about that? So pain is quite common after knee replacement surgery, and at least short-term pain is experienced by around 30% patients, and this translates to around 20% chronic pain, which is the prevalence as per the worldwide data. Indian data is not available because of the poor quality studies in this regard, but there is a huge number of patients who suffer the post-operative pain. Now, this pain, all the pain which happens in knee is classified as bone pain by the patients. But this is quite a generalized thinking, because the cause can be bone, it can be implant, it can be soft tissue, it can be sensitization. So there can be many causes, and as a result, it is not very certain, and it will not be correct to call it bone pain. Okay, so can you tell me that what should we do and not do for pain management? So after knee replacement surgery, the causes can be grouped into two headings. One is related to the surgery, and number two is not related to the surgery. So if the pain is related to the surgery, so probably you should consult your surgeon who has done this surgery, and he is the best person to guide you on how you can get rid of this pain. And that is the first thing which we advise to our patients. And I think if he says that the implant is okay and there's no infection, and there is no issue with the implant, and that all is fine, then the next step is that we check for other biological causes which can lead to this pain. And these causes can be sensitizing the impact of long-term pain. So for example, somebody has very long-standing osteoarthritis, so they are less likely to get relief from the total knee replacement. Then there are syndromes like complex regional pain syndrome, which can develop after the surgery. Then the pain can be originating from the hip or from the spine, and this can be felt in the knee. Then there is a component of patellofemoral pain, which is very well known. It can also be an inflammatory response. So these things can be taken care of by a pain physician, and of course, the results vary from patient to patient, and it is difficult to manage. But nevertheless, a treatment is available for that. Okay, तो क्या बता सकते हैं कौन से बेस्ट मिप्सी ऑप्शंस रहेंगे? So MIPSI is something, ये जो options हैं ये available हैं patient के लिए, लेकिन इसके लिए पहले देखना जरूरी है कि क्या इससे पेशेंट को फायदा हो सकता है या नहीं. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि पेशेंट को इससे फायदा होगा या नहीं, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर किया जाता है, जिसमें कि एक सिर्फ दवा दी जाती है सुन करने वाली, और पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको कितना आराम उससे मिल गया. और ये बहुत ही एक
आसानी से किया जा सकने वाला प्रोसीजर है, एक तरह का टेस्ट है ये। और इसमें अल्ट्रासाउंड में देख के या एक्सरे में देख के एक सुई के जरिए 10-15 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं दवा देख के कि पेशेंट को कितना आराम हो रहा है। अगर पेशेंट को वो दवा का जो असर है उतने समय तक आराम हो जाता है तो फिर उसे परमानेंट करने की कोशिश की जा सकती है। और ऐसा अगर स्पाइन के कारणों से है तो स्पाइन में अलग से प्रोसीजर कर सकते हैं, अगर हिप के कारण से है तो अलग से कर सकते हैं, अगर नी के कारण से है, नी में जो जेनिकुलर नर्व्स होती हैं जो कि जो घुटने के जो घुटना जो जोड़ है उसके उससे जो दर्द की जो सेंसेशन है उसे दिमाग तक ले जाती हैं, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो इसको परमानेंट करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन की जा सकती है, स्पाइन है तो स्पाइन में एंडोस्कोपी की जा सकती है। सो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि अवेलेबल हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, लेकिन उससे पहले इसका पता लगाना जरूरी है कि ये दर्द हो क्यों रहा है मरीज को। कुछ मरीजों को साइकोलॉजिकली इश्यूज होते हैं, उनमें मिप्सी काम नहीं करेगा, उनमें एक पेन कोच की मदद लेनी पड़ेगी और उससे पेशेंट को बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल पाएंगे। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एक स्पाइन और पेन फिजिशियन को ऐसे जो नी रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट्स हैं उन्हें कब दिखाने आना चाहिए? तो देखिए, नी रिप्लेसमेंट अगर तो मरीज को हो चुका है तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि पहले आप जा सकते हैं अपने सर्जन के पास ही जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट किया है उन्हें बेहतर पता रहेगा कि वो इम्प्लांट कैसे उन्होंने डाला है, कौन सा इम्प्लांट डाला है, किस तरह का प्रोसीजर किया है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और ये अच्छे से उनसे समझने के बाद जब वो बताएं कि इम्प्लांट रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं है, और कई बार वो खुद भी हमारे पास मरीज को भेजते हैं, या अदरवाइज अगर उन्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी ब्रांच ऐसी है कि इसकी काफी सारे डॉक्टर्स को भी इसकी जानकारी नहीं है। और अगर आपको ऐसा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, एक स्पाइन और पेन फिजिशियन जहां भी अवेलेबल हो उनके पास आप जा सकते हैं और एक कंसल्ट ले सकते हैं, जिससे कि वह आपकी तकलीफ को समझ के आपको बता सकें कि आपको क्या बेनिफिट वो पहुंचा सकते हैं और आपकी दर्द का कारण क्या है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात बाद में आती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखने के बाद उन्हें लगे, जैसे कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मुझे वापस उन्हें रिप्लेसमेंट सर्जन के पास भेजना पड़ता है, क्योंकि मैं देख पाता हूं कि इम्प्लांट रिलेटेड पेन है, और उसके बाद कुछ लोगों की उसमें से रिविजन सर्जरी भी हुई है और वो बिल्कुल पेन फ्री हैं। सो ये जानना जरूरी है कि दर्द का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात यही है कि दर्द का कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर एक बार पता चल जाता है तो फिर उसका इलाज जो है वो किया जा सकता है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जो मेडिसिन दी जाती है नी पेन के लिए वो हमेशा के लिए चल पाती है, मतलब हमेशा के लिए खानी ही पड़ती है, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो मेडिसिन हैं जो नी के लिए दी जाती हैं वो बहुत तरह की दवाइयां हैं, और आई थिंक इसमें कुछ तो होती हैं दवाइयां जिन्हें पेन किलर कहा जाता है। तो पेन किलर का मतलब है ऐसी दवाइयां जो कि जिन्हें के खाया और दर्द चला गया, और जब छोड़ा तो फिर दर्द आ गया। और ये ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि लिवर के, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्टमक अल्सरेशन हो सकती है, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। तो कोई भी डॉक्टर जो है वो लंबे समय तक इनको खाने की एडवाइस नहीं करता है। तो पेशेंट अपनी मर्जी से अगर खा रहे हैं तो डेफिनेटली उनको शायद लगता है, कुछ पेशेंट्स हमने ऐसे देखे हैं जिन्हें लगता है कि दिन का गुजारा नहीं हो रहा है तो चलो हम खा लेते हैं। लेकिन पेन किलर लॉन्ग टर्म कोई भी डॉक्टर जो है, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, चाहे वो एक जनरल प्रैक्टिशनर हो, चाहे वो किसी और पैथी का भी कोई डॉक्टर हो, तो आमतौर पे वो नहीं दिया जाता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि फिजियो हो गया, योगा हो गया, उससे भी पेन हो जाता है, तो उसका क्या कहना है? तो देखिए, ऐसा है कि अगर दर्द का आपने इलाज करना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पेशेंट को जो पेन है या जो आपको तकलीफ आ रही है वो किस कारण से है। सपोजिंगली आपके मसल में कोई प्रॉब्लम है और आप बार बार उसकी एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हैं।
लेकिन सपोज किया कि आपको जस्ट एक थोड़ा सा खिंचाव जैसा है, या आपने बहुत दिनों से एक्टिविटी नहीं की तो मसल आपकी जकड़ गई है एक तरह से, और अट्रोफी हो गई है, कमजोर हो गई है, तो उसका इलाज एक्सरसाइज है। तो इसलिए ये जो इलाज करने की सलाह दी जाती है, ये देख के दी जाती है कि सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई नी पेन का मरीज आता है तो पहले उसे एक्सरसाइज ही कराई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारण एक्सरसाइज ना करना है। और उसके बाद जब वो दूर कर दिया जाए, उसके बाद हमें लगे कि नहीं भाई, पेशेंट को तो उससे आराम ही नहीं हो रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं हमें तो दर्द बढ़ गया उल्टे, तो फिर समझ में आता है कि जो पेशेंट है उसे जरूरत है किसी प्रोसीजर की या किसी दवा की, और फिर दवा और प्रोसीजर की मदद से उसे ठीक किया जाता है। और उसके बाद मेंटेन करने के लिए मरीज को कहा जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। सेम चीज रिप्लेसमेंट के बाद भी होती है, और रिप्लेसमेंट के बाद भी मरीज को कुछ खास तरीके से एक्सरसाइज करने को बताया जाता है, कुछ परहेज बताए जाते हैं, प्रिकॉशंस बोला जाता है ताकि वो थोड़ा ध्यान से रहें, गिर ना जाएं, इम्प्लांट को मतलब इंजरी से बचें, बोन स्ट्रॉन्ग रखें, फिजिकल थेरेपी करें जिस तरह से सिखाया गया है। तो ये सब चीजें जो है एक क्रम में करने की जरूरत है, और वो क्रम मतलब सीक्वेंस क्या होगा आप में, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो क्या आप कुछ ऐसी टिप्स बता सकते हैं जो नी रिप्लेसमेंट करने से पहले या करने के बाद ये पेशेंट्स को फॉलो करनी चाहिए? जरूर। देखिए, जो पेशेंट हैं जिनके नी रिप्लेसमेंट नहीं हुए हैं और वो वेटिंग में हैं या इंतजार कर रहे हैं कि उनका नी रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो वो लोगों को जो डॉक्टर अभी नी रिप्लेसमेंट करने वाले हैं उनकी सलाह के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे आगे पीछे जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स में फर्क पड़ सकता है। जो मरीज नी रिप्लेसमेंट के लिए अनफिट हैं या उसे अवॉइड करना चाहते हैं, वह एक स्पाइन और पेन फिजिशियन से आके उनके द्वारा बताई गई तकनीकों को समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट के बाद जो दर्द होता है उसके लिए सबसे पहले नी रिप्लेसमेंट सर्जन के पास जा सकते हैं, और उनकी राय से जो ट्रीटमेंट है वो ले सकते हैं। और उसके बाद अगर वो रेफर करें या फिर अगर उनकी जानकारी ना हो इस बारे में, तो खुद से भी एक स्पाइन और पेन फिजिशियन को मिल सकते हैं, और उनसे भी इस बारे में राय ले सकते हैं कि उनके घुटने की दर्द का अब कारण क्या है, और इस तरीके से अपनी घुटने की दर्द का इलाज कर सकते हैं। आज आपने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के पेशेंट्स के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि नी सर्जरी के बाद उन्हें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो थैंक यू फॉर एजुकेटिंग आवर फॉलोअर्स। तो ये थे डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा, जो कि एक स्पाइन एंड पेन फिजिशियन है, और आप देख रहे थे फिनिशा पेन टॉक्स का एपिसोड नंबर 76। खत्म करने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कंसल्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट हमें कॉल करना है 8928402232 पे। सो कल आपको सेम इसी वक्त पे हम फिर से मिलेंगे नए एपिसोड ऑफ फिनिशा पेन टॉक्स के। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। थैंक यू, बाय।